everyone and welcome all. I am Sambhashini Gore from Chandala Homeopathic Medical College and today I am here with lecture 17 of RJT Kent, lectures on homeopathic philosophy, that is the science and the art of homeopathy. Here is the overview of this lecture. Hahnemann distinguishes between the scientific principles and the artistic application of homeopathy. This lecture highlights the following key points, elaborating on the fundamental aspects of understanding disease medicine and how to effectively apply these remedies in practice. Here's the key points and concept. Means of acquiring information about a disease, that is aphorism 72. So in aphorism 72 we discuss everything about disease, the types of disease, chronic disease and acute disease, and then according to homeopathy type of disease, that is dynamic disease and surgical disease. So that all we will discuss in brief in our lectures on organon aphorisms. Okay, so here we will discuss about the lecture 17 of our JT Kent, not about the organon aphorism. Okay, so here we start. Here's the key idea. The physician must gather the detailed information about the disease in order to prescribe appropriately. Hahnemann categorized diseases into acute and chronic. Explanation. Acute disease, these diseases that have a definitive course and usually tend towards recovery. They are often caused by infections or miasms like measles, cholera, etc. with a clear prodromal period onset, period of progress and a recovery phase. Chronic diseases. These diseases have no natural tendency to resolve on their own. They are progressive and enduring, often stemming and from deeper miasmatic origins such as sora, syphilis or psychosis. Here is an example of acute diseases. A child with measles will show a clear pattern of symptoms, feverish, rash and etc. that will run its course and recover. Chronic diseases. The patient with a chronic eczema may experience recurring flare-ups without a clear recovery phase, indicating a deeper miasm at work. Here's the principle. Understanding whether the disease is acute or chronic helps in selecting the right remedy. Acute disease requires less detailed study compared to the chronic ones, which demands deeper investigation. So, here we'll study कि देखो सबसे पहले क्या होती है एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है. क्रॉनिक डिजीज़ कैसी होती है, उसका बहुत ऑनसेट क्या होता है, बहुत रैपिड होता है, एग्रेसिव होता है, एक्सप्रेसिव होता है और उसके एक पीरियड ऑफ टाइम तक ही वो रहती है. ठीक है, उसके बाद वो अपने आप क्योर हो जाती है या ठीक हो जाती है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कॉलरा, मिजल्स. तो इसके अपने को पर्टिकुलर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लेने नहीं पड़ते, ये ऑटोमेटिकली इसके सिम्टम इतने क्लियर होते हैं कि हम फट से दवा सेलेक्ट कर लेते हैं. बट क्रॉनिक के केस में क्या होता है, हमें उसके पीछे की वजह जानी पड़ती है, जैसे मियाज्म. ठीक है, वजह इस मियाज्म, तो देखो उसके पीछे का मियाज्म जानना पड़ता है कि कौन सा मियाज्म है, कैसी क्रॉनिक डिजीज़ है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें भी अपनी बहुत सी डिजीज़ेज होती हैं. आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, जो ऑर्गेनॉन के एफोरिज्म होंगे उनमें बताऊंगी कि आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या होती है, ट्रू नेचुरल डिजीज़ क्या होती है. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. तो ये तो सिर्फ सिंपल सा अपना डिजीज़ था एक्यूट और क्रॉनिक जो हम जनरली पढ़ते हैं. डिस्कवरी ऑफ मोबिफिक पावर्स ऑफ मेडिसिन. सो aphorism 72 continues. The second question, how is he to discover the morphic power of medicines? Key idea. To cure a disease, the physician must understand how medicines, remedies can produce symptoms in healthy individuals through provings. Explanation. Materia medica. The study of medicine begins with understanding their morphic power, that is the symptoms they can produce in healthy individuals. This is done through proving, systematically administering a medicine to healthy individuals and recording its effects. So, how we know that our medicines, our remedies has morbific power that can cure the morbific derangement or morbific disease, morbific agents, and how it take place. Okay, so first we will understand how our medicines can produce symptoms in a healthy human being. Okay, so that's why only we do provings in our healthy individuals, not in diseased or sick person, so that we can get a clear drug picture. Okay, we record it in materia medica. A well proved medicine is to be only prescribed. Okay, so that we can note down the symptoms or we can cure the patient properly. तो देखो क्या होता है कि जब हम कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन में, तब क्या होता है कि उसकी जो मेडिसिन पावर है, जो मॉर्बिफिक पावर है, जो हमारी जो रेमेडी है उसकी जो डायनेमिक पावर है, वो क्या करती है, उस डायनेमिक डिजीज़ को पूरी तरह से रिमूव करती है और पेशेंट को क्योर करती है, वापस हेल्दी स्टेट में रिस्टोर करती है. ठीक है, इस तरह से हमारी मेडिसिन काम कर रही होती है. तो ये था उसका. ठीक, provings from the basis of selecting a remedy in homeopathy. These recorded symptoms
फ्रॉम द ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर प्रिस्क्राइबिंग अ रेमेडी दैट मिरर्स द पेशेंट सिम्टम। तो देखो मैंने आपको बहुत बार अपने सारे ही लेक्चर्स में लगभग आपको बताया है कि डिजीज़ पिक्चर क्या होती है, ड्रग पिक्चर क्या होती है, और किस तरह से जो है हम ड्रग पिक्चर से मैच करके टोटलिटी ऑफ सिम्टम बना के हम जो जितने भी सारे सिम्टम है रिकॉर्ड करके उसको हमारी जो डिजीज़ पिक्चर को ड्रग पिक्चर से मैच करके ही हमारी रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं। Here is the example. Approving of belladonna might include symptoms like fever, flushed face, dilated pupils, and restlessness. If a patient presents with similar symptoms, belladonna would be considered the most appropriate remedy. Principle: understanding a medicine's actions in prover allows a physician to match those symptoms with the patient's disease, establishing a homeopathic cure. तो देखो मैंने आपको बताया कि कैसे जब डिजीज़ पिक्चर हमारी जो ड्रग पिक्चर उससे मैच करती है तो हमको वही ही रेमेडी सेलेक्ट करके उस पेशेंट को देंगे तो वही सारे सिम्टम उसके क्योर हो जाएंगे और वो पेशेंट हेल्दी स्टेट पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बेलाडोना का एग्जांपल दिया है। बेलाडोना में हमको क्या क्या देखने मिलता है? फीवर देखने को मिलता है, फ्लश फेस देखने को मिलता है, डायलेटेड पिपल्स मिलती है, रेस्टलेसनेस मिलता है, और पेशेंट ये सारी सिम्टम लेके आ रहा है तो सिम्टम सिमिलरिटी मैच करोगे आप, ड्रग पिक्चर डिजीज पिक्चर मैच हो गई, आप बेलाडोना प्रिस्क्राइब करोगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा, आपका क्योर हो जाएगा। तो ऐसे हम होम्योपैथिक क्योर को परफॉर्म करते हैं। मोड ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन इन डिजीज क्योर। तो देखो कैसे हम अब जो डिजीज कंडीशन है उसमें अपनी मेडिसिन को अप्लाई करेंगे तो हम उस डिजीज से पेशेंट को क्योर करेंगे। Aphorism 72 continues. The third question: what is the best mode of applying these morphic powers in the cure of disease? तो देखो अब कैसे हमको अप्लाई करना है कि अपनी मेडिसिन जो है वो उस डिजीज को क्योर कर दे। की आइडिया: once the disease and remedy have been identified, the next task is to apply the morphic power of the medicine correctly. This is the art of healing, where the physician tailors the application of remedy based on the patient's need. Explanation: homeopathy involves not just selecting the right remedy but also ensuring it is administered in the correct potency and frequency. The art lies in knowing when and how to apply the remedy to stimulate the body's healing process. Example: a high potency of laxatives may be appropriate for the patient with a deep chronic disease, while a lower potency might be used for an acute episode or a sensitive patient. Principle: the physician's knowledge and skill in applying remedies are as important as undertaking disease and remedy characteristics. This requires judgment based on the individual's constitution, sensitivity and stage of disease. तो देखो क्या होता है कि हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं मेडिसिन को। तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज़ द आर्ट ऑफ हीलिंग, और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ हीलिंग तो आपको बताना पड़ेगा कि जो मोड ऑफ अप्लाइंग मेडिसिन होती है डिजीज़ में जो क्योर करने के लिए हम देते हैं किसी भी पेशेंट को, उसी को हम बोलते हैं आर्ट ऑफ हीलिंग। क्यों? क्योंकि हम हीलिंग के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, बॉडी अपने आप को स्वयं हील करेगी। ठीक है, हमारी होम्योपैथिक में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन के बारे में। वो जो सेकेंडरी एक्शन होता है वहाँ पे हमारी वाइटल फोर्स जो होती है वो क्या करती है, हमारी जो बॉडी के नॉर्मल सेंसेशन और फंक्शन है उसको वापस हारमोनियस तरीके से वर्क करवाती है और जितनी भी चीज़ें रीअरेंज हुई थी उसे वापस से रीअरेंज करती है, मतलब हमारी हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, इस तरह से क्या है हमारी रेमेडी जो है वो वर्क कर रही है और इसे ही हम आर्ट ऑफ हीलिंग कहते हैं। और ये क्या है, हमारी फिजिशियन के कला है। ठीक है, हमारी फिजिशियन, हम फिजिशियन है, हमारी ये कला है क्या, आर्ट ऑफ हीलिंग, मतलब हम हील करने की कला जानते हैं एक होम्योपैथ। और ये हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक और लाइन लिखी है, द आर्ट लाइज इन नोइंग व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई द रेमेडी, मतलब हमें पता होना चाहिए कि कितनी अमाउंट ऑफ डोज कितने बार रिपीट करनी है तो हम पेशेंट को क्योर करेंगे। मान लो कोई पेशेंट बहुत ही ओवर सेंसिटिव है तो उसको हम हायर पोटेंसी नहीं देंगे, हम उसको लो पोटेंसी देंगे या मीडियम पोटेंसी देंगे। और मान लो कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मतलब कम ससेप्टेबल है या बहुत ज़्यादा कैसे बताऊँ उसको, हाँ समझो ऐसे कि कोई पेशेंट है जिसको लोअर पोटेंसी देनी है, मतलब जो सेंसिटिव है। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, मतलब बहुत ही ससेप्टेबल है, ठीक है, उसको क्या देनी है, उसको हम हायर पोटेंसी देंगे। ठीक है, इस तरह से समझो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पेशेंट हो गया जो बहुत सेंसिटिव है, लोअर पोटेंसी, एक पेशेंट हो गया जो कम सेंसिटिव है, उसको हायर पोटेंसी देंगे। ठीक है, इस तरह से हम पोटेंसी सिलेक्शन में हमारा रोल रहेगा और ये हमारे क्या है, आर्ट है। फिर फ्रीक्वेंसी आती है कि अब तो पोटेंसी तो पता हो गई हमें कि 200 देनी है। ठीक है, तो 200 पोटेंसी को हम कितने बार रिपीट करें तो उसकी जो सिम्टम है, उसकी जो डिजीज़ है वो क्योर हो जाए। तो ये हमारा होता है सेकेंड पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग। तो ये होता है हमारा आर्ट, ये हमारी कला है। एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास ही एक ये कला होती है कि उसे पता होता है कि कौन सी पोटेंसी देना है, कौन सी रेमेडी देना है और कितने बार उसका रिपीटेशन रखना है। तो ये हो गया हमारा आर्ट। ठीक है,
यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है लेकेसिस का, तो ये आपको मैंने बता दिया है कि कैसे क्रॉनिक डिजीज़ या जो एक्यूट डिजीज़ है उसमें हमें क्या करना है कि सही पोटेंसी सेलेक्ट करनी है। जैसे कि लोअर पोटेंसी माइट बी यूज फॉर एक्यूट, तो देखो एक्यूट में क्या करना है, लोअर पोटेंसी देना है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारी प्रिंसिपल है, ज़रूर है, बट क्लिनिकली हमें एडिमेंट नहीं होना है। हमारे हैनीमैन सर ने एक ये भी बात बताई कि हम होम्योपैथ को फ्लैक्सिबल होके ही काम करना है, हमें रिजिड नहीं होना है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स है उसमें भी डिस्कस किया है कि पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग ही हमें वर्क करना है। ज़रूरी नहीं कि एक्यूट कंडीशन में भी एलिम्पोटेंसी दी जाती है, और मेरे सामने ऐसा बहुत बार हुआ है कि एलिम्पोटेंसी दी गई हो और पेशेंट जो है क्योर हो गया या ठीक हो गया, अपनी उसकी जो एक्यूट जो भी फेस था वो वापस से नॉर्मल हो गया या ठीक हो गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमें एडिमेंट नहीं होना, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं होना, हमें फ्लैक्सिबल होना है, जिससे कि हम सही तरीके से होम्योपैथी का एप्लीकेशन करके अपने पेशेंट को रिलीफ दे सके, उसे क्योर कर सके, ठीक। और क्रॉनिक केस में क्या करना है, हाई पोटेंसी दे सकते हैं, ठीक है, जिससे डीप क्रॉनिक डिजीज हो। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इन ट्रेडिशनल वर्सेस homeopathic medicine. Key idea: Hahnemann critiques traditional medicine's approach to classification, which often complicates diagnosis and treatment. In homeopathy, the focus should be on the individual symptoms rather than the disease classification. Explanation: traditional medicine classifies disease into broad categories. Example: pneumonia, tuberculosis, etc. This is helpful for public health reporting, but not for homeopathic prescribing. In homeopathy, disease diagnosis should not focus solely on naming the disease, but on understanding the characteristics of the disease, how it manifests in the particular patient. Adjective and descriptive language is necessary to describe the symptoms. The goal is not just to diagnose, but to understand the nature of the disease. Example: if a patient has a fever, a cough, a sore throat, traditional medicine might classify this as a respiratory infection. In homeopathy, the physician will consider whether the symptoms align with a remedy like aconite for a sudden fever from fright, or belladonna for throbbing fever with redness. Here is the principle: individualization of symptoms is paramount in homeopathy. By focusing on the unique presentation of a patient, the physician is better able to select the correct remedy even if the disease name is not certain. तो देखो क्या होता है, ट्रेडिशनल मैथड मतलब हमारा जो एलोपैथिक सिस्टम है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली उनका पूरा कंसंट्रेशन क्या होता है, डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस पे। बट हमें नामकरण नहीं करना है, नामकरण करना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हमारे पास जो सिम्टम आ रहा है, उसका जो डिज़ीज़ का नेचर है, उसके जो मैनिफेस्टेशन है, डिजीज़ सीट ऑफ डिजीज़ जो है, हमें उससे जानना समझना और क्योर करना है। नामकरण करके हम क्या कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज़ हेल्पफुल फॉर पब्लिक हेल्थ रिपोर्टिंग। मतलब ये जो है हमारे पब्लिक हेल्थ रिपोर्टिंग के लिए तो ठीक है, एक डेटा कलेक्ट करके एक पब्लिक जो कम्युनिटी मेडिसिन है, जब उसमें पढ़ते हैं कि ये डाटा या ये जोग्राफिकल एरिया में ये डिजीज़ ज़्यादा पाई जा रही है, तो उसके लिए तो ठीक है। बट ये हमारी होम्योपैथी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हर एक यूनिक फीचर को, हर एक यूनिक इंडिविजुअल को बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करेंगे एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल, ठीक है। नॉट ऑल डिजीजेस, मतलब ऐसा समझो कि नॉट ऑल इंडिविजुअल्स आर सेम, तो उनका डिजीज एक्सप्रेशन भी सेम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक पेशेंट है, उसको फीवर है, कफ है, सॉर थ्रोट है, तो ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले क्या करेंगे, उसको सीधा सीधा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करके उसे जो भी एंटीबायोटिक्स होगी वो या स्टेरॉइड्स होगी वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। बट हम होम्योपैथ क्या करेंगे, हम उसके बाकी भी सिम्टम लेंगे कि जो उसको बुखार आ रहा है वो किसी डर की वजह से, सडन फ्राइट की वजह से है, या थ्रॉबिंग फीवर है, रेडनेस के साथ है, या पेल फेस है, या किस टाइप का, उसके कैरेक्टरिस्टिक हर एक फीचर को हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसे रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ सिम्टम इज अ पैरामाउंट इन होम्योपैथी। मतलब हमारा मेन फोकस क्या है, इंडिविजुअलाइजेशन। हर एक पेशेंट को यूनिक मानते हैं हम, क्योंकि हमारी वाइटल फोर्स भी सबकी अलग होती है। नेक्स्ट, एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक मियाज्म। तो देखो, एक्यूट और क्रॉनिक मियाज्म मैंने आपको बहुत बार समझाया मियाज्म के बारे में, सोरा सिफिलिस साइकोसिस भी बताया मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में, और इसको और ज़्यादा ब्रीफ हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसको हम हमारे आगे के वीडियो लेक्चर्स, जो कि मैं ऑर्गेनॉन के एफोरिज्म वाले डालने वाली हूँ, ठीक है। The acute diseases always tend to recovery. The chronic diseases have no tendency whatever to recovery, but a continuous progressive tendency. They are far deeper miasm. Key idea: there are two main classes of disease, acute and chronic. Acute diseases have a clear course and can recover, while chronic diseases are deep-rooted and require long-term treatment. Explanation: acute diseases are typically short-term with a clear start and progression and recovery. Chronic diseases, on the other hand,
often result from inherited or acquired miasms such as SORA, syphilis, or psychosis, and have no natural tendency to resolve. Example, an acute disease like influenza has a defined course, while a chronic disease like rheumatoid arthritis is a progressive and require long-term management, possibly involving remedies for deep-seated miasm. Principle, understanding whatever a disease is acute or chronic helps the physician determine the length and nature of treatment. तो देखो एक्यूट और क्रॉनिक समझो पहले, ठीक है। एक्यूट क्या होता है, जिसका हमें टाइम पीरियड पता है कि वो इतने दिन में चला जाएगा। सर्दी खांसी बुखार कितने दिन रहेगा, हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, ठीक है, उसके बाद तो वो चला जाएगा। बट क्रॉनिक कैसे, जैसे कि रोमेथॉइड आर्थराइटिस हो गई, एड्स, HIV या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है, उसका कोर्स कैसा होता है, बहुत ही लंबा होता है। वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, वो वक्त के साथ और बुरा होते जाता है, ठीक है, वो ठीक होने की कंडीशन में नहीं रह जाता। तो ये होती है हमारी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेज। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि हैनीमैन का क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, तो आप क्या लिख के आओगे, एक्यूट और क्रॉनिक। हमने उसको और किसी पार्ट में नहीं बांटा, हमने एक्यूट और क्रॉनिक में ही बांटा है, हम होम्योपैथ हैं और उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। और देखो अगर हमें ये चीज़ें पता होगी कौन सी डिजीज़ एक्यूट है कौन सी क्रॉनिक है, तो हम बेटर ट्रीटमेंट कर पाएंगे, हमारे पास बेटर ट्रीटमेंट होगा और सही तरीके से हम उस डिजीज़ को क्योर कर पाएंगे, ठीक है। और इसके 3 मियाज़ में भी होते हैं, कौन कौन से अपने, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। तो ये सारे क्या है, हमने क्रॉनिक डिजीज़ के हैं, ठीक। The role of diagnosis in homeopathy. Diagnosis in homeopathy plays a secondary role compared to understanding the symptoms and selecting the appropriate remedy. Diagnosis is useful for epidemiological purpose but should not dictate treatment decisions. Explanation. Traditional medicine often relies on diagnostic label to direct treatment. However, in homeopathy, the treatment is based on individual symptoms and constitution of the patient, not merely the disease name. For contagious diseases, diagnosis help in quarantine and protection measures, but the prescription still depends on matching the symptoms with a remedy. Example, if a child has a symptom of fever and rash, homeopathically, the focus is on matching the symptoms with the most appropriate remedy, whatever it's belladonna for a sudden onset of measles, for a specific rash. Principle, the diagnosis is secondary to the identification of symptoms, which directly guide remedy selection. Diagnosis may still be useful for protective measures in contagious diseases but should not overshadow the art of prescribing. तो देखो यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, द आर्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, मतलब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है जब हम प्रिस्क्राइब करें। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है बेलेडोना का, मिजल्स और रैश का। तो देखो हम क्या करेंगे, मान लो कोई पेशेंट है, उसको हमें सिम्टम क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है, मिजल्स है, रैश है या फीवर है, जो भी है, तो होम्योपैथी के लिए हम उसके सारी सिम्टम्स से मैच करके उसे रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे, ना कि उसके डायग्नोसिस के बेसिस पे हम रेमेडी देंगे, ठीक है। जो डायग्नोसिस है हमारे लिए वो सेकेंडरी है, प्राइमरी क्या है, हमारे सिम्टम्स है, ठीक है। हमारे सिम्टम्स ही सब कुछ होते हैं, होम्योपैथी में सिम्टम भगवान है हमारे, ठीक है। और जो सिम्टम लेना है वो भी आर्ट है, और हमारी जो केस टेकिंग है वो क्या है, आर्ट है। और जो हमारी हीलिंग की प्रोसेस है वो भी क्या है, आर्ट है। प्रिस्क्रिप्शन वो भी आर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए आर्ट है, ठीक है। और ये हमारे आर्ट और साइंस के बीच का करेक्शन है, क्योंकि साइंटिफिकली हम उस पेशेंट को क्योर कर रहे हैं, ठीक है। ये आर्ट और साइंस के बीच का कलेक्शन हुआ। द इफेक्ट्स ऑफ ड्रगिंग इन क्रॉनिक डिजीजेस. Chronic drugging, particularly with allopathic medicine, can complicate the treatment of chronic disease leading to drug-induced miasm. तो देखो अगर कोई बहुत लंबे समय से, मान लो 20 साल 25 साल से वो इंसान नींद की दवा खा रहा है, तो अब उसमें जो मियाज में वो कैसा है, वो आर्टिफिशियल डिजीज़ है, ठीक है। वो ट्रू डिजीज़ नहीं है, उसकी ट्रू नेचुरल डिजीज़ वो तो कहीं बेचारी सप्रेस होकर रह गई है। अब क्या है, उसकी बॉडी में सिर्फ आर्टिफिशियल डिजीज़ बची है। वो किसकी वजह से, उसकी ड्रगिंग की वजह से। वो जो नींद की दवाई वो पेशेंट बहुत लंबे समय से ले रहा था, वो उसका इफेक्ट है, ठीक है। वो अब एक क्रॉनिक मियाज बन चुका है उसकी बॉडी में। Here's the explanation. The use of strong allopathic remedies, example calomel, jalap, sulfonol, can have long-term insidious effect on the body, creating chronic conditions that are difficult to treat. ठीक है। और इस तरह से क्या होता है कि जब एलोपैथिक इंसान बहुत लंबे समय से ले रहा होता है, तो हम उसकी असली डिजीज़ को जान ही नहीं पाते हैं। हमें क्या दिखाई देती है, वो जो एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से, जो ड्रगिंग की वजह से सिम्टम आ रहे होते हैं, हमें वो दिखते हैं, बल्कि ये जो ट्रू डिजीज़ होती है वो कहीं बेचारी खो जाती है ना। Here's an example. A person who has been repeatedly treated with antibiotics for minor infection can develop a suppressed immune system, leading to chronic fatigue syndrome or other long-term condition. Principle: chronic drugging complicates the healing process, and treatment should aim to remove drug-induced disturbance before addressing the underlying miasm. तो देखो क्या होता है कि मान लो कोई पेशेंट है, उसको बहुत लंबे समय से जो है एंटीबायोटिक्स दी जा रही थी, छोटे मोटे सर्दी खांसी में भी अच्छे से भर भर के एंटीबायोटिक खा रहा था वो। अब क्या होगा, उसकी बॉडी क्या हो गई, उसके लिए इम्यून हो गई,
उस एंटीबायोटिक उस सारी चीज़ों के लिए इम्यून हो गई। अब वो क्या दिखाएगी, अपने को बहुत ज़्यादा फैटिग मिलेगा उस पेशेंट में, क्रॉनिक फैटिग, बहुत लंबे समय से उसकी थकान ही नहीं दूर हो रही है, ठीक है, टायर्ड है वो, डल है, खोया खोया सा है, चिड़चिड़ा सा है, ठीक है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई और प्रॉब्लम हो रही है, उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिख रही है, ये सब का सब क्या है, हमारे उस ड्रगिंग का इफेक्ट है, ना कि उसकी वो ट्रू डिजीज़ है, ठीक है। तो ट्रू नेचुरल डिजीज़ क्या है, वो कहीं सप्रेस हो गई। तो कभी भी अगर हमें इस तरह का ट्रीटमेंट हिस्ट्री क्यों लेते हैं हम, कि हमें पता होता है कि वो पेशेंट कहीं से और जो है वो एक्सटर्नली, मतलब जो आर्टिफिशियल डिजीज़ है वो एक्वायर करके आ रहा है, मतलब वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कोई भी ट्रीटमेंट लेके वो अपने असली सिम्टम को सप्रेस करके आ रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी जो ड्रगिंग है उसे रिमूव करेंगे, ठीक है, उसके जो सिम्टम है उसे हम हटाएंगे पूरी तरह से, उसकी जो ट्रू डिजीज़ है हम उसको बाहर लेके आएंगे, और उसके बाद ही हम उसे सही तरीके से ट्रीटमेंट कर पाएंगे और उसे क्योर करेंगे। Here's the conclusion of this lecture. The lecture emphasizes that homeopathy is a science based on the sound principle, but applying this principle in a practice, tailoring remedies to the individual, is an art. It involves not just understanding disease, medicine, and their effects, but also skillfully applying this knowledge to treat each patient in a personalized way. तो देखो हम क्या करते हैं कि हमारा एक आर्ट है, हम इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे, हम सही से क्या करेंगे, रेमेडी सेलेक्ट करेंगे, सही पोटेंसी सेलेक्ट करेंगे, और स्किलफुली, मतलब बहुत ही एकदम बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही परफेक्शन के साथ हम क्या करेंगे, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए इंडिविजुअलाइज करके हर एक पेशेंट को पर्सनलाइज तरीके से ट्रीट करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यही ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।